بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے منافقت. منافقت یا منافق. منافق نفق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی سرنگ یا جنگل میں ایک ایسے چوہے کی بل کو کہا جاتا ہے جس کے ایک سے زیادہ منہ ہوتے ہیں. اگر شرعی طور پر دیکھا جائے، شرعی اصطلاح میں یہ معنی بنتا ہے ظاہری طور پر تو مسلمان ہو لیکن باطنی طور پر اس کے دل میں کفر ہو. حدیث میں منافق کو ذوی الوجہین بھی کہا گیا ہے، یعنی دو چہروں والا. یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس نے فرما برداری کر لی، اور کافر وہ ہے جس نے واضح طور پر انکار کر دیا. لیکن منافق وہ ہے جس نے اوپر سے تو فرما برداری کا اعلان کیا لیکن اپنے دل میں کفر ابھی بھی برقرار ہے، نہیں مانتا، یعنی اس کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہ انتہائی خطرناک قسم کی صفت ہے. تو آقا کریم دو جہان کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری ذات پر آپ لوگ درود پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر سے منافقت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے ماتھے پر لکھا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے آزاد ہے. تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں 3 قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑا: ایک مسلمان، دوسرا کافر اور تیسرا منافق. مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے اس قدر فرما برداری کی کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ سب امانت آپ کی ہیں. اور کافر وہ تھے جو اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں مانتے ہم کہ تو اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو منافقوں نے اس قدر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اسلام کو بھی تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر قدم پر اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جلاس بن سوید یہ بھی منافقوں کا سرغنہ تھا. یہ اوپر سے تو لا الہ کہتا تھا لیکن اپنے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت رکھتا تھا. ایک دن کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے موضوع پر بات کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پورا قیامت کا نقشہ کھینچ کے دکھا دیا. اس دن اس محفل کے اندر جلاس بن سوید نہ آ سکا، اس کا بھتیجا عمیر بن سعد اس محفل میں موجود تھا. حالانکہ یہ بچہ تھا لیکن یہ پکا مسلمان تھا. آج جب اس نے قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی زبان مبارک سے سنا تو وہ بچہ ہو کر لرز گیا. جب گھر گیا تو اپنے چچا کو کہتا ہے کہ چچا جان، آج آپ نہیں تھے لیکن کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ایسا لگا کہ ابھی قیامت برپا ہونے والی ہے. جب یہ بچے نے بات کی تو چچا غصے میں بولا، کیونکہ وہ منافق تھا اور بچے کو علم نہیں تھا. کہنے لگا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ کہنا تھا کہ بچہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، چچا جان، پہلے دنیا کے اندر اگر مجھے کوئی پسند تھا تو آپ تھے اور میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج آپ نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جو لفظ بولا، آج سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور آپ سے نفرت کرتا ہوں. اور عمیر بن سعد نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ میں بات دل میں رکھتا ہوں تو اپنے محبوب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے، اور اگر میں اظہار کرتا ہوں تو آپ سے میرا تعلق ٹوٹتا ہے. تو مجھے آپ سے تعلق رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور میں اپنے محبوب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کر سکتا. اس پر
जलास बिन सवैद कहका लगा के हंसा, कहने लगा तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा। उमैर बिन साद उसी वक्त दौड़ा और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने चचा जुलास बिन सवैद से बेजारी का ऐलान करता हूं। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपके बारे में गुस्ताखी की है। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया। जब जुलास आया, हालांकि उसके चेहरे पर दाढ़ी सफेद थी और बुजुर्ग था, आकर वो झूठी कस्में उठाने लगा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश थे कि उमैर बिन साद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसने गुस्ताखी भी की है और झूठी कस्में भी खा रहा है। उमैर बिन साद ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आरज़ू की कि मौला, ये झूठा शख्स है और मेरे महबूब के बारे में गलत और गुस्ताखाना अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब ये झूठी कस्में खा रहा है तो मेरा गवाह भी कोई नहीं, और आप वहदहु ला शरीक हैं, अला कुल्लि शैइन कदीर हैं, मेरी गवाही आप दीजिए। सच्चा इश्क हो तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात का सदका दुआ कबूल हुई और हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैर बिन साद सच्चा है और जुलास बिन सवैद झूठा है, ये मुनाफिक है, इसने वाकई ये बात की है। कुर्बान जाइए कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वालों पर कि जिनकी गवाहियां मेरा रब कायनात खुद देता है। सुबहान अल्लाह। उस बच्चे का जो इश्क था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया। कैसी वो मां थी कि जिसने उस बच्चे को जन्म दिया और उसकी जुबान पर, उसके दिल पर कायनात के ताजदार की मोहब्बत की मोहर थी। तो इसी तरह रब्बे कायनात ने उसके इश्क को कबूल किया और उस बच्चे का जिक्र कयामत तक आबाद कर दिया। इसी तरह एक और मुनाफिक अबू आमिर फासिक, ये अपने अंदाज में एक राहब बना हुआ था और टाट का लिबास हर वक्त पहने रखता था और लोगों की नजर में इसकी बड़ी इज्जत थी और अपने आप को बड़ा पाकीज़ा शुमार करता था। तो एक दिन कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ तो खड़ा हो गया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कौन सा दीन लेकर आए हैं। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन हनीफ लेकर आया हूं। तो वो कहने लगा कि दीन हनीफ पर तो मैं हूं। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम दीन हनीफ पर नहीं हो, मैं दीन हनीफ पर हूं और मैंने इसके अंदर तमाम आलाइशों से इस दीन को पाक कर दिया है। जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो वो फासिक बिफर पड़ा और कहने लगा कि अल काज़िबु अमातहुल्लाह, कि जो झूठा है अल्लाह उसको मारे। तरीदन गरीकन हदीदन, गरीबुल वतन करके, अपने अहलो अयाल से दूर करके और तन्हा करके, यानी उसने एक किस्म की बद्दुआ की कि जो झूठा है अल्लाह उसको अपने अहलो अयाल से दूर करके और गरीबुल वतन यानी मुसाफिर करके और तन्हा करके मारे। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन, यानी बद्दुआ उसने की। कायनात के ताजदार रहमत आलम ने आमीन कहकर इस बद्दुआ को कहर बना दिया, क्योंकि वह झूठा था, उसे मालूम नहीं था कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची हैं। फिर ऐसा हुआ कि उसने अपने 10-15 साथी जो अकीदतमंद थे उसके, उनको लेकर मदीने को छोड़कर चला गया। और जब मक्कातुल मुकर्रमा में कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मोहम्मदी का परचम लहराया तो उसने मक्का को भी छोड़ दिया। वहां से फिर वो ताइफ गया,
ताइफ भी देखा कि यहां भी इस्लाम का बोलबाला हो रहा है, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम है, तो वो भागकर शाम की तरफ चला गया। फिर वो लम्हा आया कि वो अपने अहलो अयाल से दूर हुआ, मुसाफिर हुआ और फिर तन्हा होकर मरा, वासिले जहन्नम हुआ, क्योंकि उसने खुद जो मुंह से बद्दुआ की थी कि जो झूठा है वो अपने अहलो अयाल से दूर होकर मरे और तन्हा होकर मरे और मुसाफिर होकर मरे। और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सच्चे थे और आपने आमीन कहकर इस बद्दुआ को कहर बनाया और वो कहर उसी मुनाफिक के ऊपर पड़ा। और रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत अता की और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो मुनाफिकत है ये इंतहाई खतरनाक अमल है। आज के इस दौर के अंदर हर जगह मुनाफिकत ही मुनाफिकत है और इसका अंजाम रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में बता दिया है। इसका अंजाम जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है। मुसलमान के लिए तो जन्नत है और काफिर के लिए जहन्नम है, लेकिन मुनाफिक का अंजाम जहन्नम का सबसे निचला गढ़ा। तो सोचिए जरा कि हम किस नहज पर जा रहे हैं, हमें किस चीज का खौफ है कि हमारी जुबान और हमारा दिल और हमारी आंखें एक साथ नहीं चल रहे। हमारा दिल और हमारी निगाह और कहती है और हमारी जुबान कुछ और कहती है, जबकि हमें इस बात का इल्म है कि इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, कि मेरा रब हर जगह पर कादिर है। अगर हम अपनी जुबान, अपने दिल और अपनी आंखों को एक सम्मत में लेकर चलें तो ना तो हमारी कोई रोजी बंद कर सकता है, ना हमें कोई मौत दे सकता है। जब हर चीज का खालिक और मालिक मेरा रब कायनात है तो हमें फिर किस बात का डर है कि हमारी जुबान, हमारी आंखें और हमारा दिल एक साथ क्यों नहीं। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हक अता किया है, वो हक की बात जो है वो हमें कहने से किस बात का खौफ है। तो शायद एक जगह लिखता है कि दो चार नहीं, फकत एक दिखा दो जो शख्स अंदर से बाहर की तरह हो। हम ऊपर से तो अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हमने अपने दिल को कितना संवारा, हमने अपने बातन को कितना संवारा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस जिंदगी का कतई कोई भरोसा नहीं। आइए आज हम अपनी जात से अहद करें कि हम हक परस्त हैं और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले हैं। हमें मौत का कतई कोई खौफ नहीं, हमें हक बात कहनी है, हमें हक पर चलना है, मुनाफिकत से बचना है, चाहे जो हो जाए। हमने मुनाफिकत इख्तियार नहीं करनी, इसका अंजाम बहुत बुरा है। इस इंसान की कतई कोई इज्जत नहीं होती जिसके जुबान और कहती हो और उसका दिल और कहता हो। आइए अपने इस दिल को कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार करें। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबा मेरी, इजहार तो कर जाएगा टपका जो लहू मेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि।